cell we are going to discuss about the packing efficiency in 3D unit cell. So packing efficiency in 2D unit cell, it was area of unit cell which is occupied by atom and area of one unit cell. The ratio is equal to the packing efficiency of 2D unit cells. But we are going to discuss about the packing efficiency in 3D unit cells. So in 3D unit cells we have three different parameters A, B and C. So according to A, B and C we are going to calculate the packing efficiency. Then the formula would be packing efficiency is equal to volume occupied by atoms in unit cell upon volume of one unit cell. This is the formula for packing efficiency in 3D. So first of all, we have some packings like simple cube, BCC, FCC. So we'll discuss one by one. First of all, simple cube. This is also known as primitive unit cell. So primitive unit cell में first of all draw the simple cube. In simple cube, atoms are present at each corners. So you can pick out any view. For example, let's say मैंने top view निकाला, तो I am getting this type of arrangement. Or if atoms are closely packed, then the arrangement would be in this format. So if the arrangement in this format, then we know that this is equal to R, this is equal to R, this overall is equal to A. So start the derivation. Let A is equal to 2R from any view of simple cubic unit cell. A is equal to 2R. This A is equal to R plus R. Now volume of unit cell, that is A cube, which is equal to 2R का whole cube, which is equal to 8R cube. This is the first part, volume of unit cell. Now I am going to calculate about the volume occupied by atoms in unit cell. The second part, volume occupied by unit cell. Check number of effective atoms is number of effective atoms is 1 by 8 into 8. As you know कि एक यूनिट सेल में सिंपल क्यूब के एक यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट होता है, क्योंकि हर कॉर्नर पर जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1 by 8. तो 1 by 8 into 8 is equal to 1. तो एक नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आया. इस नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो स्फेरिकल एटम, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड atoms in unit cell, it is something 4 by 3 pi r cube. So we have volume of unit cell, volume of atoms present in a unit cell. So by the ratio of these two volume, 4 by 3 pi r cube upon 8 r cube cancel out. This becomes approximate 0.524. This is the efficiency, packing efficiency. In percentage, you get
52.4%. This is the occupied space. So the empty would be 100 minus 52.4, that is equal to 47.6%. So this is the packing fraction in simple cubic unit cell. हमारा जो नेक्स्ट पैकिंग है दैट इज एफसीसी, और एफसीसी को लेकर अब हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे. तो फॉर एफसीसी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ एफसीसी अरेंजमेंट each corner. As well as for FCC, atoms are present at the each faces. We have 6 faces: left, right, top, bottom, front, back. So these are the 6 atoms on each faces. Now, first of all, I am going to calculate about the volume of unit cell. Volume of unit cell. See, volume of unit cell is what? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से मैं कोई भी एक फेस निकाल लूंगा, एनी फेस. अगर आप कोई भी एक फेस निकालोगे तो आपको जो अरेंजमेंट मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी. और अगर मैं इसे क्लोजली पैक्ड बनाऊं देन you will get this type of arrangement. This is A, this is B, this overall equal to A, this is C, this is also equal to A, but when you will draw a body diagram, this is not equal to A. So यहाँ पर जो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा 90 डिग्री को लेकर. तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ABC ट्रायंगल है. तो मैं यहाँ पर in triangle ABC triangle में पाइथागोरस इक्वेशन को यूज करेंगे. यूजिंग पाइथागोरस इक्वेशन, तो पाइथागोरस इक्वेशन को जब आप यूज करोगे तो यू विल गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. और फिर स्क्वायर हटाने के बाद अंडर रूट में आपको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलेगा, बिकॉज़ ये एक इक्वल है और ये भी एक इक्वल है. तो AC is equal to under root 2a. Now see what is A and C. This is A and this is C. So AC is like this, and in this AC I am getting R, 2R and R, that is 4R. और जो ये एटम्स होंगे सारे सिमिलर साइज के होंगे, दैट इज व्हाई मैं इनको ऐड करके 4R निकालूंगा. तो जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज 4R इज इक्वल टू रूट 2a. और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2 रूट 2R. सो दिस इज द रिलेशन, एंड on the behalf of A we will be able to calculate about the volume of unit cell. Unit cell का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A cube. Volume of unit cell, that is A cube, which is equal to 2 root 2 का क्यूब. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16 root 2 R cube, because 2 का क्यूब 8 और root 2 का क्यूब 2 root 2. So you will get 16 root 2 R cube. This is the volume of unit cell. The next part is volume occupied by atoms in unit cell. So first of all calculate
number of effective atom. Number of effective atom is 4 in FCC. FCC में 4 एटम ऐसे हो गए कि 8 एटम कॉर्नर के, तो 1/8 into 8 प्लस हर एक फेस पर एक एटम है और एक फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो 1/2 into 6 is equal to 3. 3 plus 1 becomes 4. So I am getting number of effective atom is equal to 4. तो एक स्फेरिकल एटम का अगर वॉल्यूम 4/3 pi r³ है तो 4 का कितना होगा एक यूनिट सेल में. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम occupied in unit cell is equal to 4 into 4/3 pi r³ which is equal to 16/3 pi r³. This is the volume. अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया और वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल भी आ गया. तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर से पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी. तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज 16/3 pi r³ divided by this 16√2 r³. r³ से r³ cancel, 16 से 16 cancel. You will get approximate 0.74. So percentage होगी इसकी 74%. This is occupied. So unoccupied would be 26%. If occupied space is 74, then unoccupied space it would be 26%. So this is the packing efficiency in FCC. हमने क्या किया? Packing efficiency निकालने के लिए सबसे पहले FCC ड्रॉ किया. After drawing this FCC, मैंने एक फेस को बाहर निकाला और उसके एटम्स को क्लोजली पैक किया. क्लोजली पैक करने के बाद मुझे एक ट्रायंगल मिला यहाँ से, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से मैंने AC की वैल्यू को फाइंड आउट किया और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इक्वेशन. तो AC की वैल्यू आई मेरे पास √2a आफ्टर सॉल्विंग पाइथागोरस. देन मैंने AC को देखा यहाँ पर इस डायग्राम में, तो सिमिलर एटम होने की वजह से A और C के बीच में टोटल 3 एटम आ रहे हैं, जिसमें से हाफ एटम, 2 हाफ एटम है और एक कंप्लीट एटम है. तो जो 2 हाफ एटम है उसका रेडियस r और जो कंप्लीट एटम होगा उसका पूरा डायमीटर यूज होगा 2r, एंड जो दूसरा तीसरा होगा वो भी हाफ एटम होगा, तो r + 2r + r = 4r. So 4r is equal to √2a and I can rationalize this, then I'll get a is equal to 2√2r. तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिली और फिर मैंने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट किया a³. तो इसका क्यूब करा तो 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2. सो ओवरऑल वैल्यू इट वुड बी 16√2 r³ एंड देन नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालना. क्यों? क्योंकि मुझे जो यूनिट सेल के अंदर एटम्स ने ऑक्यूपाई करा हुआ है स्पेस को, पहले उसे कैलकुलेट करना है. तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एफसीसी में कितने होते हैं? 4. तो 4 को मैंने 4/3 pi r³ से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 16/3 pi r³ आया. एंड देन आफ्टर गेटिंग दीस टू वैल्यू इस पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट किया तो मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद 0.74%, तो 0.74 वैल्यू तो एफिशिएंसी आई. और फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में निकालना है मुझे तो वो 100 से मल्टीप्लाई करके 74% ऑक्यूपाइड और जो रिमेनिंग होगा दैट वुड बी unoccupied space, that is approximate 26%. So this is packing efficiency in 3D unit cell for FCC. So come to the next point. हमने simple cube discuss किया, FCC discuss किया. So our next topic is packing efficiency in body centered cube. BCC. See, body centered cube में कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे हम. Each corner has
एटम, दिस इज फॉर Q, और एक बॉडी के सेंटर में भी एटम रखा हुआ है। तो इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ पर ट्रायंगल्स को जनरेट करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल को जब जनरेट करेंगे तो मेरे पास ट्रायंगल की जो पार्ट बनेंगे, एक ट्रायंगल मैं यहाँ से कंसीडर करूंगा A, this is A, this is B and this is C. This angle is 90 degree because एक क्यूब के अंदर जो एज लेंथ होती है उनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। और एक ट्रायंगल कंसीडर किया जाएगा A D C, A D and C। सो यहाँ पर दो सिमिलर ट्रायंगल निकलेंगे और उन दो सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से हम यहाँ पर टोटल पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में यूजफुल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन BCC हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट किया जाए, दिस वैल्यू इज इक्वल टू A, दिस वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये भी A के इक्वल है और ये भी A के इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू A। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँ कि ट्रायंगल ABC और उस ABC में यूजिंग पाइथागोरस इक्वेशन लगाया। अब पाइथागोरस इक्वेशन लगा के अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो AC इज इक्वल टू अगेन √2A। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा दूसरा ट्रायंगल। द ट्रायंगल इज ADNC और इस ट्रायंगल में मेरे पास AC इज द कॉमन वैल्यू जो कि मेरे पास यहाँ पर √2 आ रहा है। तो मैं यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। AD स्क्वायर की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिस C और D दैट इज इक्वल टू A, ये यहाँ से यहाँ तक A के इक्वल होगा। तो ये A स्क्वायर, दिस इज √2A का होल स्क्वायर एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू √3A के इक्वल है, दिस इज √3A AD। अब फिर से हम AD को कंसंट्रेट करेंगे सिमिलर साइज पार्टिकल के लिए AD, और पार्टिकल्स have similar size, पार्टिकल का साइज सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से जो A और D होगा दैट इज इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R ओवरऑल 4R। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, √3A is equal to 4R। So what is the value of A? A is 4/√3R. This is the relation, and then after getting this relation we can calculate volume of unit cell, that is AQ, which is equal to 64/3√3R³। 4 का क्यूब 64, √3 का क्यूब 3√3 and then R³। अब this is the first part, then number of unit cell, number of atom in an unit cell, number of atom in an unit cell of BCC। see corner पर 1/8 होता है, सभी को पता है। and then इसके बॉडी के सेंटर में भी एक एटम है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो एक एटम कंप्लीट माना जाएगा, तो टोटल एटम 2 आ जाएंगे। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 × 4/3πr³। दिस वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ occupied atoms, occupied space by atoms in unit cell। this is volume and this volume is volume of one unit cell। तो हम इसको पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जब हम इसे पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे then 8/3πr³ which is divided by 64
3 root 3 r cube 3 से 3 cancel 8 8 the overall value it would be 0.68. This is the packing efficiency. What is the percentage of occupied space? That is 68%. So unoccupied would be it would be 32%. So this is the packing efficiency. This is the packing efficiency in body centered tube. तो ये हमारे 3 पैकिंग एफिशिएंसी हैं. तो इन तीनों पैकिंग एफिशिएंसी में अगर आपसे पूछा जाए कभी कि आउट ऑफ एफसीसी, सिंपल क्यूब एंड बीसीसी व्हिच वन इज मोर इफेक्टिव, तो मेरे ख्याल से एफसीसी आंसर होना चाहिए बिकॉज़ एफसीसी में 74% एफिशिएंसी है और बीसीसी में 68% है और सिंपल क्यूब में 52.4 कैलकुलेट किया आपने. तो टोटल एफिशिएंसी वहां से हमारे पास जो आई वो आई मैक्सिमम इन एफसीसी. तो एफिशिएंसी का आप ऑर्डर ऐसे लिख सकते हो that efficiency is equal to FCC is more than BCC and then simple Q. This is the order for efficiency. Like most efficient packing is FCC, then BCC, and then simple Q. So this is the packing efficiency. तो इन पैकिंग एफिशिएंसी से हमारे पास 3 रिलेशंस डिराइव हुए और वो 3 रिलेशंस थे क्या? तो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एच ए एंड रेडियस आर. सिंपल क्यूब में आया हमारा a इज इक्वल टू 2r. FCC 2 root 2r is equal to a. That was the relation in FCC. In BCC that was root 3a is equal to 4r. तो हमारे पास 3 रिलेशन है. अब इन तीनों रिलेशन को यूज करके न्यूमेरिकल जनरली सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिस्टल गिवन होगा आपको, गोल्ड का कोई क्रिस्टल है जो कि एफसीसी क्रिस्टल में एफसीसी टाइप के अरेंजमेंट को बना रहा है. तो उसमें आपको गिवन होगा कि गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी विद एज लेंथ ऑफ x पिकोमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस. तो आपको सिर्फ रिलेशन में पुट करना है और आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज द पार्ट which is related to relation. इस relation के बाद जो हमारा next part है that is equal to our next topic is density of unit cell. This is most important topic. टॉपिक से सीरियसली हमेशा एक क्वेश्चन हर साल ऐड अप करता है अराउंड 2 मार्क्स और कभी-कभी 3 मार्क्स में. तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो सी व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ unit cell. So let the volume is V. So our density of unit cell is equal to mass of unit cell upon V. V is the volume of unit cell. अब हम बात करते हैं mass of unit cell. तो mass of unit cell, what is mass of unit cell? एक unit cell में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और हर एटम का मास कितना है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? मास ऑफ यूनिट सेल. तो वी कैन सी मास ऑफ ईच एटम
mass of each atom into total number of effective atom in an unit cell. This is represented by Z. तो mass of unit cell क्या है? Multiplication of mass of each atom and total number of effective atom in an unit cell. अब थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट आएगा बिकॉज हमें निकालना है हर एक एटम का मास. तो देखिए 1 मोल जो होता है, मोल इज इक्वल टू 6 पॉइंट और यू कैन से NaN. 1 mole is equal to NaN and this is equal to m gram. M is molar mass. So mass of one atom is equal to m by Avogadro number. This m is molar mass and Na is Avogadro number. जब मुझे इतने एटम्स में इतना मास है तो एक एटम का मास कितना होगा? by Avogadro number. So इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे और ये सभी वैल्यू जब इसमें पुट करी जाएगी तो जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आएगा दैट इज Z इनटू में m अपॉन में v इनटू में Avogadro. अब यहाँ पर v वॉल्यूम को v ही रहने दीजिएगा बिकॉज रीजन क्या है, हम यहाँ पर बुक्स में कहीं पर देखेंगे कि Z इनटू m अपॉन में a क्यूब इनटू Avogadro नंबर लिखा होगा. तो a क्यूब इज द वॉल्यूम, बट वो किस केस में जब मेरे पास क्यूबिक टाइप अरेंजमेंट हो. बट इफ आई डोंट हैव क्यूबिक टाइप अरेंजमेंट, लेट्स से आई हैव क्यूबोइड, सो आई कांट यूज a क्यूब. इन दिस केस वॉल्यूम इट वुड बी डिफरेंट देन क्यूब. दैट इज व्हाई यहां पर आप वॉल्यूम को वॉल्यूम ही रहने दें और जो हमारा फार्मूला होगा ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इनटू में m अपॉन में v इनटू Avogadro नंबर. सो Z रिप्रेजेंट करेगा नेचर को, नेचर ऑफ क्रिस्टल और यूनिट सेल. अगर 1 है तो सिंपल आएगा, if 2 then DCC, if 4 then FCC. This is the Z and this M is molar mass, this is molar mass, V is volume of unit cell and A is Avogadro number. तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है. इस डेंसिटी के फॉर्मूले में आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे और वो न्यूमेरिकल दो या 3 तरीकों से पूछे जाते हैं. तो 1 by 1 पहले हम सिंपल टाइप का करके देखते हैं ये क्वेश्चन. क्वेश्चन है Ag crystallizes in FCC with edge length of 2.07 into 10 की पावर minus 8 centimeter and density is 10.55 gram per cubic centimeter. Calculate the molar mass of silver. इस क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट ऑल द डेटास. लाइक इफ यू हैव FCC then Z is equal to 4 as I told you. The next part is edge length